اے خداوند میری دعا کو اپنے حضور پہنچنے دے، میرے چلانے پر اپنا کان لگا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اسی خداوند کی دعا کی تلاوتیں بتاتی ہیں کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خدا برکت دیتا ہے، وہ عزیز جانتا ہے ہمیں، اور خوشی سے جو گھر میں اس کے ہدیہ نظرانہ لے کر آتے ہیں خداوند انہیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ آج دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے شہزاد حنیف کے لیے کہ خدا سے شفا بخشے، اور انتری حنیف کے لیے خدا کے خاندانوں کو برکت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے فریزا کا آپریشن ہوا ہے، خدا اپنا دست راست بڑھائے، چھوئے اور اس مکمل سے عطا فرمائے۔ آصف لبنہ کے خاندان کے لیے، کاروبار کے لیے شاہد افضل کے لیے، اور سلیم اور لبنہ کے خاندان کے لیے، منظور اور نرگس کے خاندان کے لیے خدا کے خاندانوں کو برکت دے اور ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ پائیں بات شروع میں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی ساری غلطیوں کو سہی خدا سے معافی چاہیں۔ میں قائل مثل خدا خدا سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیال باتوں کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس سے ہماری اور بچوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قائل مثل خدا ہم پرائم فرمائے، ہمیں ہر طرح سے اپنے برکات سے مالا مال کرے۔ Vive
अपना करम दिखा कर हर आफत हमसे दूर कर दे, ताकि हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से तैयार होकर फराख दिली के साथ तेरे कामों में मशगूल रहे। वसीम खुदा उनके वसीले से तेरे साथ रूह कुदस की बहादुरी तुम्हें खुदा है और हमेशा से तक जिंदा रहता और सरफराज करता है। और इलियास के पास आए। उन दिनों में इलियास से खून की सराफत को गया और जब शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखो वहाँ एक बेवा औरत लकड़ियाँ चुन रही थी। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊँ। तो वो लेने के लिए चली। तब उसने उसको पुकारा और कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी ले लिया। उसने कहा, जिंदा खुदावन तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, बल्कि एक मुट्ठी भर आटा गले में है और थोड़ा सा तेल भी है। और देखो मैं कुछ लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ ताकि घर जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ पकाऊँ और हम खाएं, फिर मर जाए। तब इलियास ने उससे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा कर। लेकिन उसमें से मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला, और बाद उसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि खुदा इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि आटे का गरा खाली ना होगा और ना तेल की टिक्की में कमी आएगी। जिस रोज तक खुदावन कोई जमीन पर मीना ना बरसाए तब वो गई और जैसे इलियास ने उससे कहा किया। और इलियास और वो औरत और उसके घर लोग अपने दोनों बहुत दिनों तक खाते रहे और आटे का गरा खाली ना हुआ और ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ, मुताबिक खुदावन के कलाम के जो उसने इलियास को जुबान से फरमाया। पाकला के फली को सुना जाने पर खुदावन की खास बरकत। सलीम मंजूर और उसकी मिसेज के ना शादी के 29 साल हो गए हैं और ये शुक्रगुजारी उनकी तरफ ये ऊपर मैंने लिख दी है।
مسیح ایک ہی بار بتیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہوا۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 9واں باب 24ویں سے 28ویں آیت۔ اے بھائیو، مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی مقدس کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں، تاکہ اب سے خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر رہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ جس طرح کاہن اعظم ہر سال دوسرے کا خون لے کر مقدس میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بار بار قربان کرتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اسے مقرن دکھ اٹھانا ہوتا۔ بلکہ اب زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار ظاہر ہوا، تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو نیست کر دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا، اسی طرح مسیح بھی ایک ہی بار بتیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے ان کو دکھائی دے گا جو نجات کے لیے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ فقیروں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں قور نشاط اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور وہ تیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی محتاج میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب کی تعریف اٹھائی جائے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت اور انجیل مقدس آپس میں بڑی مطابقت رکھتی ہے۔ پہلی تلاوت وہ فراق دلی کا درس دیتی ہے، اور انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہمارے دامن میں ہے، جو کچھ ہماری پستی میں یا غریبی میں ہے، جب ہم اس کو یقین، توکل اور خوشی کے ساتھ خدا کی نظر کرتے ہیں تو خدا بھی پھر اپنے ہاتھوں کو کھولتا۔ جس طرح کہ زبور 145 میں زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم آج کی پہلی تلاوت
जो कि मलूक की किताब से ली गई है, और इलियास नबी की जिंदगी का एक अजीम वाकया एक पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा जो है वो अपनी परवरदिगारी, अपना रहम, अपनी शफकत अपने उम्मीद रखने वालों पर, यकीन रखने वालों पर हमेशा कायम रखता। जब वो करेत के मैदान में आता है जो उर्दन के पास है, तो खुदा अपनी परवरदिगारी इलियास पर इस तरह जाहिर करता है कि वो आसमान से कौओं को हुक्म देता है कि वो दिन और रात, सुबह और शाम उसके लिए रोटी गोश्त मुहैया करे। ये है खुदा की परवरदिगारी। और जब वो करेत के मैदान से निकलकर सारफत के इलाके में आता है, तब भी खुदा अपने बंदे के साथ होता है और यहाँ एक बेवा को अपने बंदे के लिए मुकर्रर करता है। सारफत की वो बेवा जो कि बिल्कुल बेयारो मददगार थी, उसका कोई सहारा नहीं था, एक बेटा ही था। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि वो क्या करता था, लेकिन वो उसके लिए भी जंगलों में और इधर उधर लकड़ियां चुनती है और अपने लिए और अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती है। तो जब इलियास उस सारफत की बेवा के पास आता है तो उससे रोटी मांगता, पानी मांगता, लेकिन सारफत की बेवा ये कहती है कि जिंदा तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आटा है गड़े में और कुपी में तेल है, और ये मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए काफी नहीं है, बस है कि हम खाएं और इसके बाद हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या होगा, हम कहां से लेंगे, कहां से रोटी खाएंगे। तब खुदा इलियास के जरिए उसके दिल में ये तहरीक पैदा करता है कि वो अपने दिल को खोले, मायूस ना हो, घबरा ना जाए। बेशक वो बस्ती में है, बेबसी की हालत में है, उसका कोई सहारा नहीं है, और जो कुछ उसके पास है वो उसके लिए है, लेकिन यहां खुदा अपना हाथ खोलता और इलियास उसे कहता है कि जा, जो कुछ तेरे पास है उससे मेरे लिए रोटी की एक टिकिया बना, और उसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए। बेशक ये बात बेवा औरत के लिए हैरान कुन तो थी कि किस तरह ये मुमकिन है, किस तरह 3 आदमियों के लिए रोटी मुहैया मैं कैसे कर सकती हूं। लेकिन उसने इलियास की बात पर यकीन किया और खुदा की परवरदिगारी को अपने दिल में लाकर फराख दिली का मुजाहिरा किया और अपने दिल को खोला। और इलियास ने भी उससे कहा कि जिंदा इस्राएल के खुदा की कसम कि खुदा तेरे आटे के घड़े को और तेरे तेल की कुप्पी को कभी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि जो तुझे ये देगा वो यहोवा यरी है, वो यहोवा यरी है। बाज़ औक़ात हम भी जब हम बस्ती में होते हैं, गुर्बत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब हमारे पास वसाइल नहीं होते, तब हम घबरा जाते हैं, फिक्रमंद होती हैं कि हम क्या करें।
हम किस तरह दूसरों की मदद करें। हमारे पास तो अपने खाने के लिए कुछ नहीं, हम खुदा के घर के लिए क्या दें, क्या हदिया दें, क्या शुक्राना दें। लेकिन जब हम खुशी के साथ देते हैं तो खुदा अपनी निगाह में हमें अजीज रखता है। जितना कि मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में जब हम 35 से आयत से शुरू करते हैं तो वहां यीशु अपने शागिर्दों से और हम सब से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना क्या पहनेंगे। आसमान के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें वक्त पर गुजार देता है। तुम सब जो खुदा की हजूरी में हो, तुम तो उन परिंदों से ज्यादा खुदा की निगाह में कदर रखते हो और इज्जत रखते हो। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुम्हें अपनी सूरत पर बनाया और वो तुमसे कहता है कि ऐ छोटे गले ना घबराओ। इसलिए मेरे अजीजों, साफत की बेवा ने अपनी फराख दिली का मुजाहिरा किया और अपनी फराख दिली दिखाई। जो कुछ उसके पास था उसने इनकार नहीं किया, उसने छुपाया नहीं, उसने यह नहीं कहा कि मैं इस बंदे को कहां से दूं। हम इंसानी तौर पर देने में कंजूसी कर जाते हैं, हम अपनी फिक्र करते हैं और जो कुछ हमारी आमदन होती है हम उसका हक भी खुदा को नहीं देते। अपनी आमदन का 10वां हिस्सा भी खुदा की नजर नहीं करते, बल्कि 100-200 टर्क देके चर्च को टरका देती है। लेकिन खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा हमारे हदियों पर नहीं, हमारे रुपए पैसे पर नहीं, बल्कि हमारी फराख दिली को देखता है कि क्या हमने अपने दामनों को, अपने हाथों को और जो कुछ हमारे पास है वो खुदा की नजर किया है या किस नियत से किया है। हमें देने की जरूरत है। अपनी आमदन का हिसाब लगाकर खुशी के साथ और फराख दिली से देना। और इसलिए ना सिर्फ ये हदिये, ये नजराने, बल्कि अपना वक्त भी खुदा के लिए निकालना है। अगर सिर्फ हम चंदा देकर महीने बाद ये समझ लेते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं और खुदा के घर नहीं आते, तो फिर ये काफी नहीं। खुदा चाहता है कि हम अपने दिलों को, अपने घुटनों को, अपनी रूह को खुदा की नजर करें, खुदा के घर में अपने आप को लेकर आए। तब खुदा हमारी इस नियत को, इस अमल को जो हम खुदा की नजर करते हैं, खुदा ज्यादा अजीज रखता है। और आज की अंजील मुकद्दस में एक कंगाल बेवा भी हमारे लिए एक बहुत बड़े ईमान की और फराख दिली का नमूना पेश करती है। साफत की बेवा वो फराख दिली खुदा के हुजूर पेश करती है और कंगाल बेवा वो अपनी पस्ती में और अपनी गरीबी में अपना सब कुछ खुदा के लिए दे देती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरे पास तो सिर्फ ये टका ही है, अगर ये भी मैंने चंदे में डाल दिया तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन उसने अपनी गरीबी में भी अपना सब कुछ खुदा की नजर से। ये है खुदा की परवरदिगारी पर पस्त हाली में भी, तंगी में भी
खुदा को अपना आप दे दें और अपनी फिक्र ना करें, इसलिए कि वो इस बात पर तवक्कुल करती थी जो यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। खुदा हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है। इंसानी नमूदो नमाइश, इंसानी अनापरस्ती और इंसान की खुदगर्जी, इन चीजों ने इंसानों के दरमियान, समाज के दरमियान, खानदानों के दरमियान और दुनिया के दरमियान दर्जाबंदियां पैदा कर दी। ऐसी दर्जाबंदियां कि हम दूसरों को नीच समझते, दूसरों को कुछ देना नहीं चाहते ताकि वो हमारे लेवल पे ना आ जाए। हम अपनी फ्रिजों में, अपने घरों में आटा खराब होने को देते हैं, लेकिन अपने कनस्तर से उस आटे के जरिए किसी की मदद नहीं कर सकते। हम इबादत गाहों में, मज़ारों पर कीमती से कीमती कालीन को बिछा सकते हैं, लेकिन किसी यतीम और बेवा के बदन पर जब वो सर्दी से ठठर रहे होते हैं उनके लिए चादर नहीं दे सकते, सिर्फ दिखाने के लिए। और यही इंसान की नमूदो नमाइश, यही अनापरस्ती, यही खुदगर्जी, यही बड़ापन जिसके वसीला से वो अपने आप को, अपनी चुगलाहट को, अपने नाम को जिंदा रखना चाहता है, ऊंचा रखना चाहता है, वो सब कुछ ये करता है। इस वजह से हम दूसरों की तजलील करते हैं, दूसरों को कमतर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास है और हम अपने बहुतायत में से खुदा को देते हैं, तो याद रखें कि इस अमल में हम खुदा को तो शायद खुश करते हैं, लेकिन उस इंसान को जो हमारी मदद का मुस्तहक है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। पिछले बार रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर साहब ने जब अपने पैगाम में बड़ी खूबसूरत बातें की, तो खुदावन अपने खुदा को अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपनी माने। ये है वो अमल जिससे हम अपनी बहुतायत से खुदा को भी नजर करते हैं और दूसरों की जरूरियात में भी उनकी मदद करते हैं। तो आज की ये दोनों तलाक़ें, सारफत की बेवा और कंगाल बेवा, वो हमें फराख दिली सिखाती है और कंगाल बेवा हमें सिखाती है कि गरीबी में भी हम अपना आप खुदा की नजर करें, क्योंकि यीशु ने फरमाया है कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे होती है। तो इसलिए हमें सोचना है कि हम अपने दिए हुए में से नियत के साथ और अच्छे अमल के साथ फराख दिली से खुदा को अपना हदिया और अपनी गैरतियां पेश करें और एक दूसरे का एहसास भी करें ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें। मसीह खुदा के वसीला से हम सब खड़े मसरूर हुआ और किया, दफन किया, बर्फे उतरा, किसको दूर से जीता, आसमां पर चढ़ा, लगातार पाप को याद करता है, वहाँ से संतों और मुक्त हो जाता है।
मैं इमारत का रबुल कुदस का ताकत से मुकद्दस से आकर गुनाहों की माफ़ी जिस्म की छीन और हमेशा के लिए आप पर ज़मीन से खुदा हुजूर पेश करें और अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करें। खुदा हमारे ख़ानदान को बरकत दे, किसी भी घर में रिज़्क़ की कमी ना हो। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम लोगों के लिए दुआ करें जिन लोगों ने दुआ करने के लिए कहा है। खुदा उनके लिए करा दे और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर के लिए कि खुदावंद उन्हें अच्छी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, ताकि खुदा का ये चुनिंदा खादम कलीसिया को रूहानी और जिस्मानी दोनों खुराकों से शेयर कर सके और कलीसिया में, पैरिश में तमाम खानदानों को खुदा के करीब लाने का बायस बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। दुआ करते हैं तमाम बीमार लोगों के लिए कि खुदा को हमेशा तंदुरुस्ती से याबी उम्र के दराज अता करे। अजीज़ों में कर दुआ करें। दुआ भी करें आज के जिंदा कलाम के लिए कि खुदा हम इसको सुनने वाले ना बने, बल्कि इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को तेरे नाम के जलाल के लिए सर्व करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। और बड़ी चलता के लिए दुआ मांगते हैं। खुदा इनको बरकत दे, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब हो और हर तरह से इस ज़िंदगी का ये हाथ उठाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारे खुदा और ताकत तमाम शौकत से रखी बजट वाली की अकीदत रिश्ता साथ पाती है। इनका सिर्फ तक पहुँचे मसीह खुदा के वसीले से।
دعا کریں کہ میں یہ قربانی خدا قادر تیرے باپ کے حضور میں قبول کروں۔ اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے پاس سرکسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا ہم تجھ سے محنت کرتے ہیں، تو ان نذرانوں سے راضی ہو کر عنایت فرما کہ ہم تیرے پیارے بیٹے کے دکھوں کی یاد میں یہ نہایت پاک عبادت بڑی عقیدت اور گرم جوشی کے ساتھ عمل میں لائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کی ساتھ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان رکھتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ اس باپ ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کرے۔ دنیا کی تمام چیزیں تیرے ہی ہاتھ سے بنی ہیں اور زمانوں کی تبدیلی کا انتظام بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو تو نے اپنی ہی صورت پر بنایا اور جہاں کی تمام عجیب و غریب چیزیں اس کے اختیار میں رکھی تاکہ وہ تیری طرف سے تیری ہر مخلوق پر حکومت کرے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ تیرے کاموں میں تیری ہی تعریف کرتا رہے۔ دونوں جہاں کے تمام بچندے فرشتوں اور مقرب فرشتوں سے مل کر ہمیشہ یہ کہتے ہوئے اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، قدوس اے مہربان باپ، واقعی قدوس ہے تو پاک اور پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ نظارے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اسے دکھ لانے کے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اسے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ سرا اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی دیا، اس نے بڑا شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید پس اب آپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور جہاد کا پہلے تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم آج کے ساتھ الجا کرتے ہیں بخش ایک مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ آئے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہمارا روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا پھیلی ہوئی ہے اسے قابل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں پر نظر کر جو ڈیوٹی کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام لوگوں کو یاد کر ان کا روشنی پور فرما۔ ہم تو سے محنت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں پیاری مریم مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ دادی سے ہدایت پا کر پورے ایمان پر سے ساتھ اس طریقے سے دعا کریں جس طرح خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تیری تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر ہو ہمارے روزوں کی بات ہے اور جس طرح ہم اپنی طرف ہوتے ہیں پوری عبادت کرتے ہیں ہمارے اعتماد سے ہماری برائی سے آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے محنت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش
ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। सलामती अपने घरानों की, सलामती अपने मुल्क की। आए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, कलीसिया के मार्ग पर दरकार उसे वो सलाम हाथ बश जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह पाक ने हमारे पास हुक्म चल रहा है। आए खुदा के बर्रे यह है खुदा का बरम सी खुदा जहाँ के नाम उठा जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए।
सुबह 10 बजे, हर मंगल की इबादत शाम 4:30 बजे और हर रोज की जो इबादत है वो सुबह 7 बजे। आप इन तमाम इबादत में शामिल होकर खुदा बरकत की नेमतें और सदाएं हासिल कर सकते हैं। आज बच्चों के वक्त में होंगे, अभी तक सिर्फ 2 खानदानों ने अपने बच्चों के नाम लिखवाए और जो खानदान अपने बच्चों को आज बसमत लौट जाते हैं, आपकी तमाम प्रकार से बाद हमारे साथ रब्ता करें और बच्चों को बसमान करवा सकते हैं। तो इसके बाद फिर आमद के यहाँ जो है वो फर्स्ट से शुरू होंगे। तो ये सुबह की तैयारी के लिए मेहरबानी करके, मुझे नहीं पता जुलूस निकलता है यहाँ से, कहाँ से निकलता है? हाँ, तो टाइम से आया है, फिर मतलब 24 को है। नवंबर हम दुआ मांगे। ऐ खुदा तूने आसमानी नेमत के ज़रिए हमें ताज़गी बख्शी है, हमेशा हमारा साथ दे, हर वक्त हम पर अपने रहम व करम नाज़िल फरमा और हम इस काबिल ठहरा कि अब दिन जात पाएँ मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। काज़िम खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी इस्लाम की में रहेगी। चलो नाम क्या है इसका रखा है? जॉर्डन। अच्छा मुबारक हो आपको साल। हाँ जी, कितने बच्चे हैं? बपतिस्मा, शाबाश। बपतिस्मा क्या होता है? इससे क्या होता है बपतिस्मा? ये बताइए किसको हैं? अच्छा ठीक ठीक। मुझे आधी तरीके तो पता
पूछ रहे थे अभी बपतिस्मा की रखी तो बस बपतिस्मा कलीसिया में शामिल होने के लिए होता है। और जिस तरह दाऊद नबी कहता है मीनू विच गुनाह जमया मेरी माई, वो गुनाह बरूसी गुनाह जो है वालदैन से मिलता है उसको वो गुनाह माफ होता है और कलीसिया में शामिल किया जाता है। खुदा बच्चों को मेरे खुदा तेरे जरूर लाए हैं, मेरे खुदा उनको सारी ज़िंदगी अपने हाथ में ले, जो कादो काम तो बड़े तेरे नाम में बढ़ते रहें इसी खुदा के वसीले से। जलाओ यहाँ जलाओ। मतलब बाप और बेटी और उनकी किसी नफरत है। आओ जब ठीक जॉन में तेरे बाप और बेटी और उनकी किसी नफरत समझ था और फिर का मसले को मेरे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना दे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे पूरी की है जमीन पर दिया आज मुझे और जैसे उनके कदर वाले करने बस बारिश में पड़ गई और घबराई से सलाम मरियम उधर शुरू के साथ बारह कदर पेट का फल उनका खुदा की माँ को वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। खुदावंद आपके साथ हूँ, खुदा ने बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को बरकत दे, बाप और बेटे को उसके नाम से। लो मुबारक हो बहुत बहुत।